Good morning, students. Today we learn about linear equation in two variable for 10th standard. So, before starting linear equation in two variables, we should know about two things. First is constant and second is variable. So, what do you mean by constant? It is a symbol which has a fixed value. For example, 2, 3, 4 and so on, etc. Generally, we represent the constant by A, B and C. अभी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, कहीं पर भी जाएं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. सिमिलरली 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, कहीं चेंज नहीं होगी, है ना. तो दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज कांस्टेंट. एंड नेक्स्ट इज वेरिएबल. नेक्स्ट concept is variable. So it is a symbol which has not a fixed value. For example, x. X is a variable. Why? This is our best friend, नहीं? हमारा best friend होता है. हर एक क्वेश्चन हम सपोज करते हैं like this is equals to x, that is equals to x, right now? And every case we get the different value of x. So this is a variable. This is a variable because it changes its value question by question. We represent the variable by x, y, z, etc. Now, next point is linear equation. Next point is linear equation. So any equation having degree 1, or we can say that any single degree equation is known as linear equation. For example, 7x minus 5y plus 9 equals to 0 is a linear equation because यहाँ पर वेरिएबल क्या है x and y, and x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1. सो दोनों वेरिएबल जो हो रहे हैं इस इक्वेशन में कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट डिग्री के फॉर्म में आ रहे हैं. दोनों वेरिएबल फर्स्ट डिग्री के फॉर्म में आ रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. अगेन we can take some more example. 4x plus 9 equals to 0. अगेन यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो किसके फॉर्म में आया, फर्स्ट डिग्री फॉर्म में आया है. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन. अगेन एक और ले लेते हैं हम. 5y minus 7 equals to 0. अभी देखोगे यहाँ पर एक ही वेरिएबल दैट इज y, और y किस फॉर्म में आया है, फर्स्ट डिग्री फॉर्म में आया है. दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? The standard form of linear equation is ax plus by plus c equals to 0. But here some restrictions are there. What is that? A and b cannot simultaneously 0. A and b cannot simultaneously 0. Why? देखो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, अगर a 4 कंडीशन 5 कंडीशन हो सकती है. इसकी कैसी हो सकती है, देखिए अगर a equals to 0 and b equals to 0, so what we get? C equals to 0, and that is constant, right now? That is a constant polynomial type. Because C is a constant and its degree is 0. Its degree is 0, that's why it is a constant. Okay, now second case is what happened? So second case, A equals to 0 and B
does not equals to 0. So what is the form of our equation? It become by plus c equals to 0. By plus c equals to 0, and this equation represent a line parallel to x-axis. This equation represent a line parallel to x-axis. Now third condition is that if a does not equals to 0 but b equals to 0, so our equation become ax plus c equals to 0. ये तो 0 था, that's why by जो टर्म थी वो अलग हो गई, राइट ना. नाउ लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जो इक्वेशन है एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. वो कौन सी लाइन होगी? लाइन पैरेलल टू y axis, पैरेलल टू y axis. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? फोर्थ पॉइंट. फोर्थ कंडीशन हो सकती है हमारे पास. क्या हो सकती है? देखो यहां पर a does not equals to 0, b does not equals to 0 and c equals to 0. तब क्या होगा? तब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसका फॉर्म कुछ ऐसा हो जाएगा, ax plus by equals to 0. ax plus by equals to 0. अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. ये कैसी लाइन होगी? जो ऑरिजिन से पास होगी, राइट ना. नाउ एक और कंडीशन आती है यहाँ पर, फिफ्थ कंडीशन. अब फिफ्थ कंडीशन क्या है? देखो देख लेते हैं. फिफ्थ कंडीशन इज दैट a does not equals to 0, b does not equals to 0 and c is also does not equals to 0. तब हमारी इक्वेशन जो है ax plus by plus c और ये फॉर्म में आएगी, दैट इज ax plus by plus c equals to 0, and this is known as linear equation in two variable, because यहाँ two variables हैं x and y. यहाँ दो variables हैं x and y, and both are occur in the equation in the form of first degree. In the form of first degree. That's why this is known as linear equation and two variable. Now एक इक्वेशन जो है ax plus by plus c equals to 0, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं. इन प्रीवियस क्लास मींस 9th क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ है, राइट ना. कैसे हो सकते हैं देख लेते हैं. यहां से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 4x minus 7y equals to 9, राइट ना. अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो कभी कंप्लीट ही नहीं होंगे. देखिए कैसे. अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आता ना. x एंड y की वो वैल्यूज, x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. x एंड y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे साइमल्टेनियसली, राइट ना. तो उन वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट ना. तो अभी क्या होगा? देखो यहां से देखो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, राइट. देखते हैं कैसे. एक मैं एक टेबल बना लेता हूं, आप लोग जानते हैं, राइट ना. ये x है, ये y है. अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट कर देता हूं, x की वैल्यू कितनी पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया, राइट ना. तो y की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा? y की वैल्यू जाएगी -9/7 आ जाएगी ना. सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं, राइट है. अगेन वंस अगेन यहां पर मैं अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तब मेरे को क्या मिलेगा? x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी 9/4. वंस अगेन अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, y की वैल्यू 1, यहां पे देखो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, राइट ना. 4x minus 7y equals to 9. y के एलिमेंट कितनी पुट कर दिया है? 1. यहाँ से क्या मिलेगा? 4x minus 7 into 1 equals to 9. Now 4x minus 7 equals to 9 and 4x equals to 16, right? And x equals to what? 16/4, that is 4. It is 4. So यहाँ पर जब x1 y1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4. Once again एक और रखते हैं हम यहाँ पर अपने मन से x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं. x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं.
अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है देख लो, फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग, राइट ना। क्या हो जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 1, देखो हमारा जो सोल्यूशन होगा क्या मिल जाएगा, 4 1 into 1 minus 7y equals to 9, तो minus 7y equals to 9 minus 4, right ना। तो what we get, minus 7y equals to 5 and y equals to minus 5 upon 7, right है। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, minus 5 upon 7। इस तरीके से हमको जितनी वैल्यूज हम x की रखेंगे तो y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, y की वैल्यूज अपने मन से रखते हैं तो x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिल जाएंगे, कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हमको कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है ना। तो इसके लिए क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का कांसेप्ट समझना पड़ता है, राइट ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस, concept is simultaneous equation. Simultaneous equation means what? It is a system of two or more linear equation. एक सिस्टम होता है, अभी जैसे दो वेरिएबल्स की बात करें, टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हमको दोनों वेरिएबल्स में दोनों टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की हम जब बात करते हैं तो हमको एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, राइट ना। तो उसके लिए हमको कितनी इक्वेशन चाहिए, टू इक्वेशन। अगर हमको टू इक्वेशंस मिल जाती हैं तो हमको उसका यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, मिलेगा ये जरूरी नहीं है, मिल सकता है, उसमें भी कंडीशंस हैं, दैट विल बी डिस्कस लेटर, ओके ना। तो सिस्टम क्या है, दो वेरिएबल्स की दो इक्वेशन का सिस्टम होना चाहिए, राइट। a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। ऐसा सिस्टम x और y की ऐसी वैल्यूज, साइमल्टेनियसली ऐसी वैल्यूज जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दीस टू इक्वेशन एंड दिस सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इज नोन एज साइमल्टेनियसली इक्वेशन, राइट ना। Once again, there are some method of solving simultaneous linear equation. So, solving methods. देख लीजिए solving methods कितनी होती हैं। तो ये दो टाइप से होती हैं, एक होती है ग्राफिकल मेथड, दूसरी होती है अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड एक ही है बट अलजेब्रिक मेथड तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। ग्राफिकल मेथड एक ही है, अलजेब्रिक मेथड तीन पार्ट्स में डिवाइड जाती है। फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, and last is cross multiplication method। So we will start from graphical method, how to solve the simultaneous equation। Graphical method, so what do you mean by graphical method? Plotting the graph of the given equation
in a Cartesian plane we get solution of linear equations. So here तीन कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पर. फर्स्ट कंडीशन देखो क्या हो सकता है. हमारे पास इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन सपोज क्या है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. तो यहाँ पे तीन कंडीशंस हो सकती हैं. कौन कौन सी तीन कंडीशंस हो सकती है देख लीजिए. पहली कंडीशन ये होगी कि कुछ a1x b1y plus c1 का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सपोज कुछ ऐसी लाइन मिल जाएगी हमको. सपोज कर रहे हैं राइट ना, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी एज पर सोल्यूशन a1x plus b1y plus c1 equals to 0 का ये ग्राफ आ गया राइट ना. वंस अगेन दूसरी कंडीशन को क्या मिल सकती है देखो, यहाँ से कुछ ऐसी दूसरी लाइन मिल जाए हमको, मीन्स a2x plus b2y plus c2 equals to 0. अभी देखो दो लाइन से जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है राइट ना. पहली कंडीशन ये हो जाती है. सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है जब मैं a1x और a1x plus b1y plus c1 का जब ग्राफ प्लॉट करता हूँ, सपोज ये आ जाएगा, किसका ग्राफ आया ये, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 का ग्राफ आ गया राइट ना. अभी जब मैं a2x plus b2y plus c2 का ग्राफ प्लॉट करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाएगी राइट ना. एक लाइन इसी के पैरेलल मिल जाती है मेरे को. ये कौन सी इक्वेशन है, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. a2x plus b2y plus c2 equals to 0. These two lines are parallel. यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको पैरेलल लाइंस मिल रही है. और थर्ड जो कंडीशन हमको मिल सकती है वो क्या मिल सकती है देखो, थर्ड कंडीशन में क्या मिल सकती है, कुछ ऐसा मिल सकता है ग्राफ. इस ग्राफ में कैसे मिल सकता है देखो, एक लाइन ये x a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 मिल जाए. अब इसके ऊपर ही दूसरी लाइन ये देखो, ये इसके ऊपर ही एक और लाइन मिल जाए सेम बिल्कुल राइट ना. ऐसा भी तो हो सकता ना. ये लाइन कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये तीन कंडीशंस हमको मिल सकती हैं. या तो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे. कैसी लाइन मिल रही है यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है. यहाँ पे कैसे मिल रहा है हमको, पैरेलल लाइंस मिल रही है राइट ना. और यहाँ पे क्या मिल रही है, कोइंसाइड लाइंस मिल रही हैं. अभी इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जब हमको मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है यूनिक सोल्यूशन. क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन. एक ही सोल्यूशन मिलता है. ये पॉइंट है यहाँ पर x और फर्स्ट a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 इंटरसेक्ट कर रही हैं. वो लाइंस जो है एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होता है राइट ना. यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब इस सिस्टम में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन. तो पैरेलल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, नो सॉल्यूशन. ओके नाउ ये इंटरसेक्ट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, यूनिक सॉल्यूशन को राइट ना. यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही थी. और ये देखो ओवरलैपिंग लाइंस हैं, इन कोइंसाइड लाइंस हैं, मतलब एक के ऊपर एक लाइंस आ रही है राइट ना. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को, मतलब मैनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं. these two lines, there are three conditions by solving graphical methods राइट ना. तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं. नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइंस आर पैरेलल. और मैनी सॉल्यूशंस मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब मिलेंगे, जब लाइंस आर कोइंसाइड. लाइंस आर कोइंसाइड. वी विल अंडरस्टैंड ऑल these things by taking some examples. Okay, so let's start examples. Now we will solve
these equations, system of these equations. First question is that x plus y equals to 9, first equation. Second equation is x minus y equals to 4. अभी सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व, फर्स्ट जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? देखो ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पर 3 कॉलम बना लेंगे हम, एक टेबल बनाएंगे 1 2 3 कॉलम्स की एक टेबल बना लेंगे, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की एक कॉलम। यहाँ पर x, यहाँ पर y। सपोज हमने यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया अपने मन से। आप लोग जानते हैं 9th क्लास में आपने ग्राफ को प्लॉट करना देखा है, राइट ना? तो हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9। एंड सेकंड टाइम में हम देखो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 9 x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, देखो बना लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली नीचे भी आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी आएगा, राइट ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on. So this plane is known as Cartesian plane. This plane is known as Cartesian plane. Now we will plot the points 0, 9. 0, 9 एक पॉइंट हमारे पास है, उसको प्लॉट करते हैं। 0, 9 कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है, that is 0, 9। सेकेंड पॉइंट है 9, 0, वो पॉइंट हमको यहाँ पर मिल रहा है, that is 9, 0। इसको प्लॉट कर दिए। अब यहाँ से इक्वेशंस को हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक अच्छी लाइन बनाना भाई, ठीक है ना? तो ये जो लाइन हमको मिल जाएगी किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट ना? ओके, नाउ सेकेंड जो इक्वेशन थी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, है ना? और ये सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसके लिए भी हम एक 3 कॉलम और 2 रो वाली एक टेबल बना लेते हैं। इसमें x लिख देते हैं, इसमें y लिख देते हैं, राइट ना? अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, अपने मन से करना है। ये कोई भी पॉइंट ले सकते हो, नहीं कि 0 लेना, कुछ भी ले सकते हो, बट 0 लेंगे तो इससे हो जाएगा, राइट ना? अब जब हमने 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है -4 ना, राइट है? अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो बेटा, तो y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4। वन सेकंड, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो अब जब प्लॉट करूंगा, देखो 0, -4, इट इज 0, -4 दिस पॉइंट एंड नेक्स्ट इज 4, 0 रिप्रेजेंट दिस पॉइंट। अगर हम इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दें, राइट ना, तो हमको ये जो पॉइंट मिल जाएगा, ये जो है पॉइंट मिल जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, राइट ना? समझ आ रहा है? सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, अंडरस्टैंड? नाउ वी विल सॉल्व second question. Second question means x plus y equals to 7 and 2x plus 2y equals to 9. तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इक्वेशंस, x plus y equals to 7 and second is 2x plus 2y equals to 9.
सो वंस अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 3 कॉलम और 2 रो वाली एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर y। x को 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 7। y को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है 7। मीन्स हमारे पास 0,7 ये वाला पॉइंट आ गया और 7,0 ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइन करते एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, राइट ना। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x plus y equals to 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड इक्वेशन इज 2x plus 2y equals to 0। इसके लिए भी हम एक 3 कॉलम और 2 रो वाली टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर y। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी 9/2, 9/2 और हम बोल सकते हैं 4.5। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से मिलता है x की वैल्यू आपको मिल जाती है 4.5 और बोल सकते हैं 9/2। ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों एक ही चीज है, राइट। इनको हम प्लॉट करते हैं 0,4.5, 0,4.5 कहाँ पर जाएगा, 0 ये है x का, 4.5 यहाँ पर आएगा। ओके, वंस अगेन 4.5, 0, 4.5, 0 ये आ जाएगा। इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे। कुछ ऐसी लाइंस हमको मिल जाएंगी और ये लाइंस कैसी रिप्रेजेंट कर रही है, 2x plus 2y equals to 9 को रिप्रेजेंट कर रही है। तब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये पैरेलल लाइन मिल रही है, दैट इज द सेकंड केस। यहाँ पर हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मींस नो सोल्यूशन। इस सिस्टम का क्या है, नो सोल्यूशन। इसे यूनिक सोल्यूशन था जो इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा था और ये पैरेलल लाइंस आई हैं तो इसका नो सोल्यूशन, राइट ना। पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ थर्ड वाला हम देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, 3x plus 5y equals to 7। वंस अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं इसको रब कर देता हूं। तो इक्वेशंस लिख लेते हैं हम। 3x plus 5y equals to 7 and 9x plus 15y equals to 21। ओके, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, 3 कॉलम्स और 2 रो वाली। यहाँ पर x, यहाँ पर y। वन सेकेंड, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, y की वैल्यू मिल जाएगी 7/5। 7/5 मीन्स व्हाट, 1.4। ओके, वन सेकेंड हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7/3। 7/3 7/3 मीन्स व्हाट, 2.3। 2.3। चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं भाई, राइट ना। x की वैल्यू 0 ये आ गई, y की वैल्यू 1.4। 1.4 मीन्स समथिंग यहाँ पर आएगा, दैट इज 0,1.4। नेक्स्ट y, x की वैल्यू 2.3, दैट इज 2.3 समथिंग यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट और 0 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 3x plus 5y equals to 7 को। ओके, नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन हमको गिवन है 9x plus 15y equals to 21। तो यहाँ से देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ बनाने के लिए 3 कॉलम और 2 रो वाला एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगा x, ये जाएगा y। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 7/5। 7/5 दैट इज 1.4। और जब y की वैल्यू 0 पुट करते तो हमको क्या मिलेगा 21/9। 21/9 मींस व्हाट, 7/3 दैट इज 2.3। यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन सेम आए हैं, राइट ना। मतलब ये जो लाइन होगी वो क्या करेगी, दूसरी इक्वेशंस को भी रिप्रेजेंट करेगी। इसके ऊपर ये दूसरी इक्वेशन वाली लाइन आएगी, राइट ना। तो ये क्या होगा, कोइंसाइड लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस हो गई। और ये दूसरी इक्वेशन कौन सी है हमारी,
9x प्लस 15y इक्वल 21 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस हमको मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? मैनी सॉल्यूशंस। तो हमने यहाँ पर देखा कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने पर हमको तीन कंडीशंस मिल सकती हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल सकती है। फर्स्ट क्या मिल सकता है हमको? फर्स्ट मिल सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा हमको मिल सकता है पैरेलल लाइंस। और थर्ड हमको मिल सकता है कोइंसाइड लाइंस। कोइंसाइड लाइंस जब मिलेंगी तब क्या होगा? हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हमारे पास इस कंडीशन में क्या होगा? मैनी सॉल्यूशंस, राइट ना? इस कंडीशन में नो सॉल्यूशंस एंड इस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा बेटा? आपका वन सॉल्यूशन, राइट ना? So this is the graphical method. We will understand about the graphical method by the examples in next lecture. Thank you very much.